He said you were the only one this year who received a full score in GSOC selection. कि जितना early start करो उतना best रहता है. I actually required something structured to save my time, effort, and give my 100% there. Hi everyone and welcome to Apna College, and what you see behind me are the results of Apna College tech placements for software engineering roles. इसमें you'll find different types of organizations. We have product-based companies, service-based companies, fintech firms and startups. And you'll see thousands of our students getting selected in these organizations. And as per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about Indian tech placements with online preparation. You'll find more of our selected students on the Apna College website along with their testimonials. अब आज के सेशन के अंदर we are going to focus on something special related to artificial intelligence, machine learning and generative AI. आज की डेट में if we are interacting with technology, we are actually interacting with a lot of AI without even knowing about it. आज हमारे पास Netflix है, Prime है, Hotstar है, जहाँ पर हमें content recommendations मिलते हैं. We have platforms like YouTube and Instagram where we get ad suggestions. We have face recognition. We have self-driving cars. We have automated drones. In medicine, we have drug discovery and diagnosis happening in real time with the help of AI. Finance के अंदर we have fraud detection, we have loan approvals happening in real time. उसके साथ में आज हम different tools को use करते हैं, जैसे ChatGPT हो गया, Gemini हो गया. We use GitHub Copilot and Claude for our coding exercises. So we are actually surrounded with a lot of different AI, and we are using technologies like LLMs, transformers, NLP and computer vision without even explicitly thinking about it almost every single day. But this was the user end of the story. बट आज के सेशन के अंदर हम फोकस करने वाले हैं ऑन द क्रिएटर एंड ऑफ द स्टोरी. मतलब आज के सेशन के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी बिकम अ प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, फॉर बिल्डिंग एंड फॉर इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर इंटीग्रेटिंग AI in the tech sector in tech related products. So after receiving a lot of constant emails, messages and comments regarding bringing something related to AI and ML, we have finally decided to launch the new batch of Prime, which is Prime 2.0 for all the future data scientists and AI/ML engineers of India. अब Prime जिन students को नहीं पता, it is the one-stop solution for learning AI/ML from a practical point of view. It is the new, complete and structured batch जिसके अंदर we are going to focus on becoming AI job ready in the next 4.5 months. एंड प्राइम के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स के साथ में हम बहुत सारा कोड लिखने वाले हैं, बहुत सारा लॉजिक सीखने वाले हैं, एंड उसके साथ में वील बिल्ड अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स जिसके हमारे पास मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे. सबसे पहले तो वील गेन सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसके साथ में इट विल ऑल्सो मेक अस इंडस्ट्री रेडी एंड इट विल ऑल्सो हेल्प अस एनहांस आवर रेज्यूमे. And additionally, all the Prime students are going to get dedicated doubt support for resolving their doubts. So for all the students who requested us for it, there's an early bird offer जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 11th March शाम के 9 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. And Prime 2.0 की जो classes हैं वो start होने वाली हैं 21st March से. Now before we move forward, let's get an overview of the different tech roles which are available in the AI industry. So the two most sought after roles are that of an AI engineer and a data scientist. अब ये जो दोनों रोल्स हैं ये काफी रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल सेट, एंड हमें यहाँ पर स्किल सेट पर ही ज्यादा फोकस करना है रादर देन फोकसिंग ऑन द टाइटल. क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सकता है काम AI इंजीनियर वाला हो रहा है पर वहां पर जो टाइटल है दैट इज जेन AI इंजीनियर और दैट इज मशीन लर्निंग इंजीनियर. वहीं दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि कंपनी A के अंदर मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करने का काम AI इंजीनियर कर रहे हैं, कंपनी B के अंदर वही सेम काम हमारे डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं. तो वी हैव टू फोकस ऑन द स्किल सेट, द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, नॉट द एग्जैक्ट टाइटल्स. AI इंजीनियर्स की अगर बात करें तो इनसे बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है कि इन्हें डेटा के साथ वर्क करना आना चाहिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए, एंड उसके साथ में दे शुड आल्सो बी फेमिलियर विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. डेटा साइंटिस्ट से बेसिक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इन्हें डेटा के साथ अच्छे से वर्क करना आना चाहिए, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में आना चाहिए, एंड उसके साथ में सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दे आल्सो एक्सपेक्ट डीप लर्निंग नॉलेज फ्रॉम देम. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि AI engineer is also a data scientist who also has familiarity with software engineering principles.
अब AI इंजीनियर के एग्जैक्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की बात करें तो सबसे पहले वी स्टार्ट बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो इंडस्ट्री के अंदर मेजॉरिटी कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है कि हमें पाइथन के ऊपर अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो उसके लिए वी लर्न पाइथन प्लस SQL के साथ हमें काम करना आना चाहिए, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेसेस आर मोस्ट कॉमन इन द इंडस्ट्री एंड SQL इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर डेटाबेसेस। उसके साथ में वी शुड ऑल्सो हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद मल्टीपल पाइथन लाइब्रेरीज जो हमारे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर, प्री प्रोसेसिंग के अंदर काम आते हैं, जैसे NumPy हो गई, Pandas हो गई, Matplotlib हो गई, Seaborn हो गई। उसके साथ में वी शुड ऑल्सो लर्न अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, जहां पर इंप्लीमेंटेशन के लिए वी जनरली यूज scikit-learn। प्लस वी शुड ऑल्सो नो अबाउट डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, अबाउट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, जहां पर इंप्लीमेंटेशन के लिए वी आर गोइंग टू यूज PyTorch। एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की टर्म्स में सबसे पहले तो AI इंजीनियर्स को फेमिलियरिटी होनी चाहिए ऑफ वर्किंग विद APIs, जहां पर OpenAI इज वन ऑफ द लार्जेस्ट AI कंपनीज इन द टेक सेक्टर, तो उसकी APIs के साथ वर्क करना हमें आना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, फ्लास्क जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके साथ में बेसिक HTML CSS JS हो गया, इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए। प्लस उसके साथ में वी शुड हैव ग्रेट फेमिलियरिटी विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें Git एंड GitHub बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड कुछ सर्टेन कंपनीज हैं हु ऑल्सो आस्क फॉर फेमिलियरिटी विद कंटेनराइजेशन, जहां पर हमें Docker एंड Kubernetes सीखना पड़ता है। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज फॉर एन AI इंजीनियर। एंड इसी का ही एक सबसेट हमारे पास यहाँ पर एज अ डेटा साइंटिस्ट आ जाता है। तो प्राइम के अंदर चाहे हम AI इंजीनियर को टारगेट करना चाहते हैं, चाहे हम डेटा साइंटिस्ट को टारगेट करना चाहते हैं, हम अपनी तैयारी को प्राइम से आकर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम में हम इन सारी ही टेक्नोलॉजीज को डेप्थ के अंदर कवर करने वाले हैं। एंड ऑल्सो प्राइम इज फॉर ऑल दोज वर्किंग प्रोफेशनल्स टू, जो अभी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है कहीं पर काम कर रहे हो, बट दे नाउ वांट टू अपस्किल देमसेल्व्स विद AI/ML skills and they want to enhance their resume with AI/ML projects। या फिर let's suppose हम transition करना चाहते हैं from maybe a software engineering position, maybe a data analyst position, maybe a data engineer position to AI/ML positions। या फिर if we are a college student or a fresher who wants to target software engineering placements, लेकिन हम अपने resume के अंदर एक healthy mix रखना चाहते हैं of development and AI/ML projects, तो वहां पर हम 1 to 2 AI/ML projects को अपने resume के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उन्हें बिल्ड करने के लिए जो हमें स्किल्स चाहिए होंगे उन्हें भी हम प्राइम के अंदर कवर करेंगे। एंड क्योंकि आज की डेट में AI एक काफी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हमारे रेज्यूमे में वी हैव सम AI/ML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, देन दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अस एनहांस आवर रेज्यूमे। Now, generally, the first question that we get asked from students is कि who exactly is eligible for Prime 2.0? तो Prime 2.0 is first of all for all those working professionals जो शायद इंडस्ट्री के अंदर अभी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, बट दे वांट टू ट्रांजिशन टू AI बेस्ड टेक रोल्स, जैसे AI इंजीनियर हो गया, जैसे डेटा साइंटिस्ट हो गया, या फिर वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हु जस्ट वांट्स टू अपस्किल देमसेल्व्स एंड ऐड सम AI/ML रिलेटेड स्किल्स, AI/ML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स टू देयर रेज्यूमे। सो दीज वर्किंग प्रोफेशनल्स आर एलिजिबल। सेकंड केस है हमारे BTech MTech या BCMCA स्टूडेंट्स का, हु आर मे बी फाइनल ईयर फ्रेशर लेवल स्टूडेंट्स जो फुल टाइम AI रिलेटेड टेक रोल्स को टारगेट करना चाहते हैं AI इंजीनियरिंग एंड डेटा साइंस के अंदर। थर्ड केस है उन सेकंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का जो AI रिलेटेड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। एंड फोर्थ केस है उन स्टूडेंट्स का हु वांट टू डेडिकेटेडली प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट्स, बट दे आल्सो वांट टू लर्न एंड एनहांस देयर रेज्यूमे विद AI बेस्ड स्किल्स। सो ऑल ऑफ दीज पीपल आर एलिजिबल फॉर Prime 2.0। Now, if we talk about the exact syllabus, exact curriculum in detail, so these are the topics जिनको हम कवर करेंगे प्राइम के अंदर। तो यहाँ पर जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप लेक्चर्स में आकर मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, एंड वी ऑब्वियसली नो दैट यू हैव अ लिमिटेड टाइम, तो इसीलिए प्राइम के अंदर हमने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। सबसे पहला तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन लर्निंग AI/ML फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक को भी साथ में लेकर चलेंगे। सेकंड फोकस इज ऑन बिल्डिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, एंड द थर्ड फोकस विल बी ऑन सेविंग योर टाइम। तो हमारी जो प्रिपरेशन है उसे हम डिफरेंट फेजेस के अंदर करेंगे। फेज 1 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारे केस में पाइथन होगी, तो सबसे पहले हम पाइथन के ऊपर एक्सटेंसिवली फोकस करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज में हम डेटा के ऊपर फोकस करेंगे, जहां पर डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन, डेटा विजुअलाइजेशन हम सीख रहे होंगे, एंड यहीं पर हमारी जो पाइथन लाइब्रेरीज है, NumPy होगी, Pandas होगी, Matplotlib होगी, Seaborn होगी, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। थर्ड फेज के अंदर वील फोकस ऑन मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के पीछे काफी सारा मैथमेटिकल लॉजिक भी होता है, जो जरूरी होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना, प्लस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लॉजिक को समझने के लिए। तो हम मैथ्स फॉर AI को भी कवर करेंगे, जिसमें यहाँ पर इवन दो मैंने सिर्फ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लिखा है, पर उसके साथ में प्राइम के अंदर हम लीनियर एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स हो गए, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो मशीन लर्निंग सीखने के लिए जरूरी है, उनको भी कवर करने वाले हैं। सो देयर इज नो प्री रिक्विजिट जो आपको पहले से सीखना पड़ेगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन प्राइम।
तो मशीन लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे सुपरवाइज लर्निंग हो गई, अनसुपरवाइज लर्निंग होगी। सुपरवाइज लर्निंग में भी हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हो गए, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स हो गए, अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स हो गए, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होगी। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को तो हम कवर करेंगे। उसके साथ में हमारे काफी सारे इवैल्यूएशन मेट्रिक्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ हो गया, प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, F1 स्कोर हो गया, आर स्क्वायर्ड वैल्यू होगी, मीन स्क्वायर्ड एरर हो गया। तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम साथ के साथ लेकर चल रहे होंगे। तो डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम कवर कर रहे होंगे। अ लॉट ऑफ देम आर नॉट इवन लिस्टेड हियर। एंड उसके साथ में इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओपन AI APIs, प्लस हम डीप लर्निंग को भी एक्सप्लोर करेंगे, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को भी सीख रहे होंगे, जिसमें हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आ जाते हैं, ANNs आ जाते हैं। तो डिफरेंट ANN आर्किटेक्चर्स को हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पॉपुलर है FNN विच इज फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, प्लस हमारे ट्रांसफॉर्मर्स भी आ जाते हैं विच आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड टूल्स लाइक ChatGPT टुडे। तो ChatGPT जैसे जो टूल्स हैं, हमारे डिफरेंट LLMs है, वो मॉडर्न LLMs आज की डेट में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा यूज करते हैं। तो उसको हम सीखने वाले हैं। हमारे जेनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड हमारी डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं AI के अंदर, जैसे जेन AI हो गया, जैसे NLP हो गया, जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट फेमिलियर विद ऑल ऑफ दीज टर्म्स। एंड डीप लर्निंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज PyTorch। एंड इन टर्म्स ऑफ मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, हम अपनी डेवलपमेंट विद AI के लिए फ्लास्क को सीखने वाले हैं, जिसमें साथ के साथ हम बेसिक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को भी सीखेंगे टू लर्न अबाउट सम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स। प्लस वर्जन कंट्रोल के लिए वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट Git एंड GitHub। वी विल आल्सो कवर SQL फॉर डेटा साइंस, एंड उसके साथ में फॉर कंटेनराइजेशन वी आर गोइंग टू कवर Docker एंड Kubernetes। अब ये तो हमारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए, लेकिन प्राइम के अंदर जो हमारा मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जिसके लिए हम बहुत सारे माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं। तो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अपने लेक्चर्स के अंदर हम जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम बहुत सारे थ्रू आउट द बैच अपने माइनर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। इन माइनर प्रोजेक्ट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती रहे, जिसकी वजह से हम एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी होंगे। तो जिन भी कॉन्सेप्ट्स को हम सीख रहे होंगे लेक्चर्स के अंदर, उन्हीं को प्रैक्टिकली रियल लाइफ डेटा सेट्स के ऊपर हम इंप्लीमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कोड, एंड वहां से हम बहुत सारे यूजफुल माइनर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करेंगे। उसके बाद एट द एंड ऑफ द बैच जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ मेजर प्रोजेक्ट्स। एंड ये ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें हम कुछ ना कुछ एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड दीज आर द मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको हमें अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड करना है, बिकॉज दीज आर द प्रोजेक्ट्स जो हमारे इंटरव्यूअर को, जो हमारे रिक्रूटर को इवेंचुअली इंप्रेस करने वाले हैं, एंड दीज आर द वंस विच आर गोइंग टू मेक अस मोर इंडस्ट्री रेडी। तो इसीलिए प्राइम के अंदर हमारा जो फोकस होगा वो सिर्फ थियोरेटिकल लर्निंग पर नहीं होगा, वो एक्चुअली हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स को गेन करने के ऊपर होगा। तो these are some of the projects, इनमें से a lot of them you're going to build with me। और उसके साथ में there are some major projects who will be covered by AI professionals who are currently working in the AI industry। और उसके साथ में in terms of projects, प्राइम के अंदर जो हमारा फोकस होगा that will be on building industry specific projects। इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स कहने का क्या मतलब है? जैसे लेट्स सपोज हम किसी फिनटेक कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हमारे रेज्यूमे के अंदर फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो हमारे रेज्यूमे को और ज्यादा एनहांस करते हैं, वो हमारे रेज्यूमे को और ज्यादा रेलिवेंट बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, जिसकी वजह से हमारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स को, मल्टीपल डिफरेंट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे पॉपुलर सेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, ई-कॉमर्स, मेडिकल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो एट द एंड हमारे पास एक चॉइस होगी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम अपने पर्टिकुलर रेज्यूमे के लिए पिक करना चाहते हैं, एंड वी विल बी एबल टू कस्टमाइज आवर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट वी आर अप्लाइंग फॉर। एंड उसके साथ में प्राइम में वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैव मल्टीपल लाइव मेंटरशिप सेशंस। लाइव मेंटरशिप सेशंस हमारे प्लेसमेंट स्पेसिफिक सेशंस होंगे। जैसे अभी तक जो भी हमने बात की दैट इज रिलेटेड टू AI/ML, पर प्लेसमेंट के लिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, बोथ फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। जिसके अंदर आ जाता है कि हम अपना रेज्यूमे किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं, हाउ डू वी अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज, रेज्यूमे के अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मेंशन करेंगे, हम अपने एजुकेशन को, हम अपने एक्सपीरियंस सेक्शन को किस तरीके से रखेंगे, अगर हम ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई करें तो हाउ कैन वी लुक आउट फॉर रेफरेंस। उसके साथ में हम अब किस तरीके से अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो या फिर अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर टेक इंटर्नशिप इंटरव्यूज, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर टेक प्लेसमेंट इंटरव्यूज। तो इन सारी इंपॉर्टेंट चीजों से रिलेटेड हमारे डेडिकेटेड लाइव मेंटरशिप सेशंस होने वाले हैं जो आपके मेरे साथ होंगे।
प्लस जब हम इतनी सारी चीजें कवर करेंगे तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स, एंड जिन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड टीम ऑफ टीचिंग असिस्टेंट्स जो हमारे 1-on-1 डाउट्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। प्लस हमारे जो क्लास के काफी सारे कॉमन डाउट्स होंगे उनको हम अपने लाइव मेंटरशिप सेशंस के अंदर ही कवर कर लेंगे, जैसे रेज्यूमे से रिलेटेड हो गया, ऑफ कैंपस से रिलेटेड हो गया, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो गया, एंड उसके साथ में अलॉन्ग विद एवरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स along with their solutions. And उसके साथ में for all the prime students we are going to have a dedicated community of prime students जहाँ पर सारे like minded individuals हैं जिसके साथ आप interact कर पाएंगे। बेसिकली आज की डेट में जब हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की, ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स की बात करते हैं तो जो कंपटीशन है दैट इज नाउ ऑन अ नेशनल लेवल। तो वहां पर एज अ स्टूडेंट या एज अ वर्किंग प्रोफेशनल हमारा फोकस होना चाहिए कि कैसे टेक इंडस्ट्री के अंदर हम टॉप 10% या टॉप 5% इंजीनियर्स के अंदर आ सके, एंड उसके लिए खुद को लाइक माइंडेड लोगों से सराउंड करना, लाइक माइंडेड इंजीनियर से सराउंड करना इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ कम्युनिटी जो उसके अंदर हमें काफी ज्यादा हेल्प कर रही होगी। प्लस उसके साथ में वील ऑल्सो बी एबल टू शेयर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, नॉलेज एंड आवर आइडियाज। प्लस वील ऑल्सो हैव सम जॉब रिलेटेड notifications and there are definitely going to be prizes for the top students, and जितने भी हमारे प्राइम के top students होते हैं वो complete their batch, we also try to hire them for paid internship opportunities as teaching assistants for the next batches. Now next let's cover some frequently asked questions related to prime. The first question that generally students ask is, should I learn AI in 2026? Am I eligible? तो definitely yes, in the past few years there are a lot of roles जो AI sector के अंदर emerge हो रहे हैं। इसके अंदर AI engineering के roles हैं, इसके अंदर data science related roles हैं और भी different roles हैं। तो अगर हम इन specific roles के लिए prepare करना चाहते हैं तो yes, we are eligible. Exact eligibility को हमने already discuss कर लिया है। If we are a working professional who wants to transition to AI based tech roles या फिर हम खुद को upskill करने के लिए, अपने resume को enhance करने के लिए AI को सीखना चाहते हैं, then we are eligible. Or if we are a BTech, MTech, BC, MCA student who wants to target full-time AI-based tech roles, या फिर we are a second, third year student जो internship related opportunities को target करना चाहते हैं, तो वहाँ पर we are also eligible. Third case of eligibility will be अगर हम specifically as a student software engineering roles को target करना चाहते हैं, पर हम अपने resume के अंदर industry relevance दिखाने के लिए AI related skills को, AI related projects को add करना चाहते हैं, then also we are eligible. Second question is this syllabus enough for AI engineer and data science roles? तो yes, the syllabus is going to be enough. Prime के अंदर जो हमारा major focus होगा that will be on preparing for AI engineering and data science roles. तो इन दोनों roles को अगर हम target करना चाहते हैं तो the syllabus is going to be covered from end to end. As a working professional, will I get time to cover the batch? तो yes, हमने प्राइम के ऊपर एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर फोकस किया है कि एज अ फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एज अ फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट हम अपनी एआई की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकें। तो इसीलिए अपने नेक्स्ट 4.5 मंथ्स के अंदर प्राइम के अंदर जो हम बैच शेड्यूल फॉलो करेंगे दैट विल बी अ वीकेंड शेड्यूल, जिसमें हमारे लेक्चर्स को हम वीकेंड के ऊपर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो हमारे पास एम्पल टाइम होगा बोथ फॉर कंप्लीटिंग द लेक्चर्स एंड फॉर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट्स। आई एम अ बिगिनर, विल बेसिक्स बी कवर्ड? तो येस, प्राइम के अंदर देर आर नो प्री रिक्विजिट्स। चाहे हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने ऑलरेडी काफी प्रोग्रामिंग की हुई है, चाहे हम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने आज तक कोई प्रोग्रामिंग नहीं की हुई है, हम सारी चीजों को फंडामेंटल लेवल से कवर करना स्टार्ट करेंगे सो दैट बोथ ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर एबल टू स्टार्ट देयर एआई जर्नी. What all industry roles ask for AI and ML in hiring? So there are a lot of roles that expect AI ML skills. जिसमें से the roles with the majority jobs in the AI sector and the most sought after roles are that of an AI engineer and a data scientist. And हम भी इन्हीं दोनों के हिसाब से अपनी जो preparation है उसको कर रहे होंगे. What will be the mode of communication? The mode of communication for everything in the batch is going to be Hinglish, which is a mix of Hindi and English, which will be similar to this session. अगर आज का सेशन हमें अच्छे से समझ में आया है तो प्राइम के अंदर भी सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आने वाली हैं. What will be the schedule of the lectures? तो lecture schedule के लिए हम एक weekend schedule को follow करेंगे once again, जिससे it becomes easier for us as a full-time college student and as a full-time working professional to upskill ourselves with our AI skills. And now at the end, there's an important message that I want to share with you, जो आपको as a teacher बताना मेरी responsibility है, जो in fact I share with all of my batches, कि सिर्फ किसी भी बैच के अंदर एनरोल होने से किसी स्टूडेंट की अच्छी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है. डेफिनेटली हमारा जो एक बैच होता है वो हमें क्वालिटी रिसोर्सेज दे सकता है, एक स्ट्रक्चर लर्निंग पाथ दे सकता है, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी दे सकता है. पर इवेंचुअली एज अ स्टूडेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस कंसिस्टेंसी को, उस कमिटमेंट को ऑनर करें. जो भी क्वालिटी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उनसे जाकर हम पढ़ें, जो भी प्रोजेक्ट्स हमें बनवाए जा रहे हैं उनको जाकर हम एक्चुअली बिल्ड करें. अगर हमें बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से बनाना है, लिंक्डइन प्रोफाइल को इस तरीके से सेटअप करना है, रेज्यूमे से बिल्ड करना है, तो उन चीज़ों को हमें एक्चुअली हार्ड वर्क, एफर्ट पुट इन करके बिल्ड करना पड़ेगा. तो एक अच्छी प्लेसमेंट, एक अच्छी इंटर्नशिप उन्हीं स्टूडेंट्स की लग रही होती है
जो उस कमिटमेंट को ऑनर करते हैं एंड जो हार्ड वर्क एंड एफर्ट पुट इन करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी पर। तो प्राइम 2.0 के अंदर आने का हमें तभी सोचना है जब हम उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए रेडी हैं एंड हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स को पुट इन करने के लिए रेडी हैं। So finally, the classes for Prime 2.0 are going to start from 21st March 2026, and for all the students who are dedicatedly waiting for it, there's an early bird offer जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 11th March शाम के 9 बजे तक। The link for enrolling in the batch is in the description box. See you in class. Stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her ties in the hurt.